So let us start with our lecture number 7 on atomic physics. So there is one topic which is left from atomic physics that we are going to cover up today, that is Black's law. ठीक है, Black's law देखेंगे and that has been related with the X-rays only. ठीक है, ये topic रहेगा and then after that we are going to continue with some questions, advanced question on the atomic physics. ठीक है, तो atomic physics को आज हम conclude करेंगे and from the next lecture we are going to start with the nuclear physics. ठीक है, तो आज एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स में हमने क्या क्या देख लिया एंड देन विल कंटिन्यू विद द ब्रैक्स लॉ एंड विल क्लोज इट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, सो हमारा जो एटॉमिक फिजिक्स का जो होल कॉन्सेप्ट है स्टार्टेड विद टू अंडरस्टैंड के एटम के अंदर होता क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन इज़ बीन कॉन्फिगर्ड. तो उसका सबसे पहले जो हमारा देखा, सबसे पहले जो मॉडल था, देयर वाज अर्लियर मॉडल आल्सो लाइक जे थॉमसन, उससे पहले डाल्टन था, डाल्टन के बाद जे थॉमसन एंड देन लेटर ऑन द मोस्ट कन्विंसिंग मॉडल वाज द रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल वाज द मोस्ट कन्विंसिंग वन, बट एंड विच वी कॉल द क्लासिकल मॉडल आल्सो, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म circular motion around the nucleus. But उसमें दो प्रॉब्लम हुई थी, जो वो दो प्रॉब्लम could not able to explain by the classical model. One was the stability problem, why the atom is not spiraling down into the nucleus. ठीक है, तो that was one problem. The other problem was the discrete spectra that it was having rather than the continuous spectrum. ठीक है, so these two problems were there which classical physicists could not able to explain. But later on Bohr tried to solve these two problems with his energy quantization. ठीक है, energy level fix करके और orbital fix करके he tried to solve this problem with the energy quantization, but he could not able to explain the reason why he has to fix the energy quantization. How do electron know कि I have to move in this fixed orbit, why not in any other orbit? But he has used the Planck's and the Einstein quantization concept and utilize it and gave the postulates and solve this problem of stability in the spectra. ठीक है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देती with the concept of quantization and your energy level fixed and the orbital fixed concept. ठीक है, but he could not able to explain why. ठीक है, why का आंसर जो आया था हमारा, हमने देखा था, हमने जो dual nature of radiation पढ़ा था in the last lecture, and then we have then using the de Broglie concept and then we have concluded with the Davison and the Germer experiment के matter is also dual nature. ठीक है, matter is also dual nature, that means electron can behave like a wave also. And when we have concluded the reason why the quantization is there in the Bohr, why there is a quantization, why the electron only revolve in a particular orbits only and not in any set of orbits. That the reason behind that electron is like a standing waves. ठीक है, and the concept of standing waves and the resonance has been used in here, so that with that particular length and you'll be getting the constructive interference and getting the resonance, and that's why you'll be getting a quantization of orbit. केवल वही ऑर्बिट आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी स्टैंडिंग वेव बना पाएगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इज एज अ स्टैंडिंग वेव दैट केम्स फ्रॉम द डुअल नेचर, दैट गिव्स the reason why. ठीक है, that gives the reason why behind the Bohr's quantization of energy fix. ठीक है, so in the Bohr also when we were studying the quantization, so a lot of things comes up regarding the atomic structure. Where we have seen the energy transition के how light has been emitted. तो earlier हमने series देखी थी in the energy transition. We have seen Balmer series which comes into the visible spectrum. ठीक है, तो we could able to see that and we have seen the energy transition. Then later on there are certain other series which has been developed which was Lyman, Paschen, Brackett and of one series. So those were the series which came in the energy transition. And then in the Bohr we have seen the atomic collision when we were seeing the atomic collision and the energy transition, इन दोनों के concept से अगर हम देखें, we have got new concept which came out to the X-rays. ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन ही होता है, बट यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ एटॉमिक कोलिजन की वजह से देर आर वेज व्हेन द एटम इज बीन कोलाइडेड विद सम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो क्या होता था, दो प्रोसेस होते थे कि व्हेन द वन इज़ द ब्रेमस्ट्रॉलोंग प्रोसेस एंड अदर वन इज़ द यू आर नॉकिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोसेस. ठीक है, जिसकी वजह से यू गेट अ एक्सरेज एंड दिस एक्सरेज इज़ अ इनर मोस्ट एक्सरे का जो फिनोमेना होता था वो होता था आपका कि इट हैज़ टू बी कि आपका जो एटम होना चाहिए वो that Z needs to be high. ठीक है, Z needs to be high so that जो energy level होने चाहिए that should be high, वो energy gap high होना चाहिए. energy gap high होगा then only you could able to get the X-rays, otherwise energy gap कम होगा तो you could not able to get the X-rays. So X-rays is the when you knock out the electron from the innermost orbit. ठीक है, तब X-ray की possibility ज़्यादा होती है. ठीक है, तो outer orbits में you will get the visible range or you get other set of electromagnetic waves, but अगर आप innermost deep inside the innermost orbit का अगर आप electron knock out करोगे then there is a
चांस, अगर इफ़ यू आर हैविंग द हायर एटॉमिक नंबर देन यू विल गेट द एक्स रेज, ठीक है. देन वी हैव सीन इन द एक्स रेज में हमने दो फिनोमिना देखे थे, दो स्पेक्ट्रा देखे थे. वन इज़ द करेक्टरिस्टिक एक्स रे which gives के आपका which gives the प्रॉपर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट जो आपने यूज़ किया, टारगेट एलिमेंट जो आपने यूज़ किया उसकी, ठीक है. बिकॉज every material is having their different characteristics x-rays, ठीक है. and but the continuous x-ray is kind of a breaking x-rays, Bremsstraw long भी बोलते थे. and this is same for each and every material because it has been decided by the by how much electron that you are charging, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को कितना फास्ट मूव करा रहे हो, that depends upon the voltage. so इसका जो लैम्डा मिनिमम डिपेंड्स ओनली ऑन द वोल्टेज, ठीक है. बट यहाँ पे हमने देखा था इट डिपेंड्स ऑन द नॉकिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द नॉकिंग आउट ऑफ द इनरमोस्ट कोर इलेक्ट्रॉन, के शेल से जो नॉकआउट होता है. एंड देन द from the higher shell the electron is filling that inner shell, and then the radiation has been emitting, and those were the discrete radiations, ठीक है. so these two concepts we have seen in the x-rays. and then x-rays related हमने concept देखा था in the last lecture which is called the Moseley's law, which said के your under root of frequency is directly proportional to your z, that is your atomic number, and he has concluded how to calculate the atomic number with the frequency, ठीक है. and with the conclusion of the Moseley's law we have seen कि हमारी जो periodic table होती है इनमें जो most fundamental होता है किसी भी metal के लिए, किसी भी element के लिए, most fundamental thing is it's a atomic number, not the atomic mass. then in the past we were designing the periodic table on the basis of atomic mass and got changed to the atomic number after the Moseley's law, ठीक है. तो आज का जो lecture है we are going to see one more law which is called the Bragg's law, which has been used in X-ray crystallography which to understand the 3D structure of the atom, ठीक है. 3D structure of atom को समझने के लिए we use this Bragg's law and the X-ray bombarding on the crystals, ठीक है. so we'll see this Bragg's law and we'll do some questions onto it in today's lecture, right. so Bragg's law हमने already in the last lecture when in the Davison and Germer experiment में हमने Bragg's law देखा था in to prove that matter is a wave, ठीक है. in that we have seen. तो now here also we'll see the same perspective of the Bragg's law. तो Bragg's law क्या होता है हमारे यहाँ पे, when Bragg's law जो होता है it is a foundation principle for the X-ray crystallography. Crystallography means to understand the atomic structure of a crystal, ठीक है. it explain how the X-ray interact with the regular repeating atomic lattice of crystal and producing the diffraction pattern, ठीक है. so when the X-ray is incident on it and the your in the crystal क्या होते हैं आपके जो atoms होते हैं they have been placed like in a grating former, ठीक है. they have been placed like parallelly in this structure, ठीक है. parallelly place होते हैं ये, ठीक है. and repeated atomic structure होता है, जैसे ये हो गया, फिर ये repeated atomic structure होता है जिसकी वजह से when the X-ray is coming it got reflected from here, then from the second layering it got reflected from here, and यहाँ से जो waves निकलती हैं आपके these waves are going to interfere, ठीक है. because these waves are going to interfere and these interference is going to give you the diffraction pattern, ठीक है. now as the X-ray is a high X-ray मतलब the diffraction pattern you are not going to get it from any other place, ठीक है. because diffraction pattern के लिए you need to have a जो अपर्चर होता है या आपकी जो स्पेसिंग होती है दैट शुड बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर वेवलेंथ, ठीक है. तो आपका जो यहाँ पे जो एक्सरे के साथ जो आपको दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इफ़ यू आर यूजिंग द एक्सरे देन ओनली यू कुड एबल टू सी द Bragg's law, वर्किंग ऑफ द Bragg's law, यू कुड एबल टू सी द इंटरफेरेंस हेयर, ठीक है. बिकॉज द डिफ्रैक्शन वी नो द डिफ्रैक्शन ओनली हैपन whenever there is a साइज़ जो हमारा रिलेटिव साइज़ होता है बिटवीन द वेवलेंथ एंड द अपर्चर साइज़ इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है. बट यहाँ पे अगर हम देखें एक्सरे का होता है, एक्सरे की वेरी हाई आपकी एक्सरे की वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, लो लैम्डा होती है, ठीक है. तो इतनी छोटी लैम्डा यू कुड नॉट एबल टू सी इट एनी ऑब्स्टेकल, नो स्लिट इज़ पॉसिबल, ठीक है. जो हम स्लिट देखते थे ये रेक्टेंगुलर स्लिट या अपर्चर देखते थे, तो नो अपर्चर और द स्लिट इज़ पॉसिबल फॉर दिस. ओनली थिंग विच इज़ पॉसिबल फॉर दिस डिफ्रैक्शन टू हैव एक्सरे का डिफ्रैक्शन करने के लिए दैट वी नीड टू हैव अ अपर्चर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज़ ऑफ द साइज ऑफ एटम, ठीक है. बिकॉज साइज ऑफ द एटम इज़ ऑल्सो ऑफ 1 अपर्चर, ठीक है. तो इंटर एटॉमिक गैप जो होता है हमारा, ये जो गैप है दिस इज़ ऑफ द 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही होता है. सो हेयर वी कुड एबल टू सी द डिफ्रैक्शन हैपनिंग, ठीक है, बिकॉज दिस गैप इज ऑलमोस्ट डी. तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल हेयर, ठीक है. सो बिकॉज एटम्स आर अरेंज इन द रेगुलर पैटर्न लाइक दिस, ठीक है. लेयरिंग में इन द क्रिस्टल के अंदर जो होते हैं हमारे एटम्स होते हैं, दे आर बीन प्लेस्ड इन रेगुलर पैटर्न, और जिसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है दिस डिस्टेंस इज माई
T, ठीक है. सो नाउ दिस नेचुरल ग्रेटिंग इज 3D ग्रेटिंग इज है. ग्रेटिंग का मतलब कि आप पतले पतले लाइन्स में यू हैव बीन डिसाइडेड, ठीक है, यू हैव बीन डिवाइडेड अ सरफेस, ठीक है. तो यहाँ पे आपका दिस ऑलरेडी लेयरिंग इज देयर इन द क्रिस्टल्स, ठीक है, ऑलरेडी लेयरिंग इज देयर, तो दैट इज व्हाट वी कॉल द ग्रेटिंग. एंड बिकॉज देर इज इट क्रिस्टल जो होता है आपका दैट इज नेचुरल 3D ग्रेटिंग फॉर एंड इट इज सुटेबल फॉर द डिफ्रेक्शन, ठीक है. वाई इट इज सुटेबल फॉर द डिफ्रेक्शन? बिकॉज आपका जो स्पेसिंग होती है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ द, यहाँ पे एक्सरे डिफ्रेक्शन की बात हो रही है ना, एक्सरे डिफ्रेक्शन की बात हो रही है. तो एक्सरे के लिए बिकॉज छोटी वेवलेंथ है, छोटी वेवलेंथ का हमारा जो अपर्चर होता है उसका साइज हमारा एटम की स्पेसिंग के बराबर हो सकता है, ठीक है. Now, because of this series of parallel plane, is series of parallel plane of atoms separated by distance g, and atoms are arranged in a crystal. The waves they diffract and they bounce back, and after the bouncing back they got interfere, and we'll see a interference pattern, ठीक है. And to understand that interference pattern, we know कि if the integral multiple of lambda आपका आ रहा है तो there you will get the constructive interference, ठीक है. So because यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये यहाँ से डिफ्रेक्ट होकर जा रही है, यहाँ से डिफ्रेक्ट होकर जा रही है. Now there is a path difference, and because of this path difference you will see a phase difference. phase difference की वजह से क्या होगा, आपका intensity difference आएगा, interference pattern होगा, ठीक है. Now when an X-rays hit a crystal, X-rays are scattered by the atoms because the crystal is highly ordered 3D lattice. They scatter the X-rays, and these X-rays are now going to interfere, ठीक है. These X-rays are now going to interfere. Constructive interference क्या होगा, when the scattered waves from the parallel planes आर अलाइनिंग इन फेस, ठीक है. जब ये पैरेलल फेस दे आर अलाइनिंग इन फेस, अलाइनिंग इन फेस का मतलब ये जो आपका जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर लैम्डा, ठीक है. दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन दे आर गोइंग टू अलाइन इन फेस एंड दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग डिटेक्टेबल रिफ्लेक्शन, ठीक है. द कंडीशन फॉर हैविंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ लेंथ बिटवीन द वेव्स रिफ्लेक्टिंग एंड द एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन, जो ये और इससे एडजेसेंट से जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन से होना चाहिए, दैट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स रेज, ठीक है. सो दैट इज द कंडीशन फॉर आर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दैट इज इफ़ यू टेक दिस इज़ माई इंसिडेंट एंगल, दिस इज़ माई थीटा, ठीक है. ये ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं. दिस इज़ थीटा, तो दिस विल बी थीटा, ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा. तो ये जो थीटा हो जाएगा देन दिस इज़ माई डी, दिस विल कम्स आउट टू बी डी साइन थीटा. तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो पाथ इन दोनों का सेम है, ठीक है. तो ओनली डिफरेंस पार्ट डिफरेंस इज दिस एंड दिस. तो ये कितना आ रहा है मेरा डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा, दैट कम्स आउट टू बी 2D साइन थीटा. टोटल पार्ट डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू योर एन लैम्डा, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है. सो at only special angles, so Bragg's law will be in the Bragg's law the waves is going to add, and most of the angles the waves are going to get cancelled, ठीक है. And diffraction peaks you are going to see this at this special angles which we are going to get it in the interference, ठीक है. नाउ जो एक्सरे और ब्रैग्स लॉ का जो यूसेज होता है दैट इज टू आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, टू सी द स्पेसिंग बिटवीन द एटम एंड टू आइडेंटिफाई द अननोन मटेरियल्स. इन सब चीज़ों के लिए वी यूज़ इट, द ब्रैग्स लॉ एंड द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एक्सरे प्लस ब्रैग्स लॉ के यूज से वी कुड एबल टू सी ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ब्रैग्स लॉ. नाउ वी विल सी, इतना ही हमारा एटॉमिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एटॉमिक फिजिक्स. सो क्वेश्चंस देखते हैं. दैट दीज आर द मिक्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो उससे रिलेटेड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर एंड वी विल सी दोज क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक बोर एटम इज 4 राइटबर्ग, ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपका, फ्रॉम योर ग्राउंड स्टेट एंड यू आर टेकिंग इट टू द स्टेट जहाँ पे आपकी इनफाइनाइट स्टेट पे n इक्वल टू इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे एनर्जी विल गेट 0, ठीक है, एनर्जी विल गेट 0, राइट. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका 4 राइटबर्ग है, ठीक है. ये ग्राउंड से आप लेके गए यहाँ पे इनफाइनाइट तक, ठीक है. यहाँ पे n इक्वल टू इनफाइनाइट और ये n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक लेके गए, तो यहाँ से ले जाने में जो आपको एनर्जी देनी पड़ी है दैट इज़ योर 4 राइटबर्ग, ठीक है. नाउ राइटबर्ग हमारे को दे रखा है 2.2 × 10⁻⁻18 जूल. What is the wavelength of radiation emitted when the electron jump from the first excited state to the ground state, ठीक है. We have to find out the wavelength excited because यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ z, ठीक है. वैल्यू ऑफ z निकालना है हमारे को. दिस वैल्यू ऑफ z वी कुड एबल टू गेट दिस आयनाइजेशन एनर्जी इन द राइटबर्ग. जब वो z मिल जाएगा हमारे को, वी कुड एबल टू फाइंड आउट दिस वेवलेंथ ईजिली बिकॉज वी नो इट गॉट एक्साइटेड फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपका that is from n is equal to
2 से n इज इक्वल टू 1 पे एक्साइट हुआ है, तो वी कोड एबल टू गेट द रेडिएशन का लैम्डा निकल सकता है अपना, ठीक है, तो वी कोड एबल टू फाइंड दैट। सेकंड इज रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस के लिए भी हमारे को ये z की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज रेडियस जो होता है आपका हेयर ऑल्सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z आता है इसमें भी, ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z एंड देन वी कोड एबल टू गेट बोथ द वैल्यूज ईजली। तो z निकालने के लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी किस तरीके से लिखते हैं हम, RCH z² लिख सकते हैं, ठीक है, दिस RCH इज नथिंग बट योर राइटबर्ग लिखते हैं इसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज योर वी कैन टेक फॉर n इज इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट ले जाने के लिए, तो वील राइट इट डाउन 1/n², RCH 1/n² माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट स्क्वायर, तो ये दिस विल कम 0, ठीक है, n की वैल्यू आपने 1 डाल दी तो यू विल फाइनली गेट z² RCH ओनली पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो z² RCH 1 डिवाइडेड बाई n² की जगह 1² माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट स्क्वायर, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 0, तो आपके पास ये 1 हो गया, तो आपके पास ये बचेगा z² RSC दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन दिस एनर्जी, और ये आपको कितनी दे रखी है 4 राइटबर्ग, ठीक है। RSC की वैल्यू राइटबर्ग की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, दैट इज 1 राइटबर्ग, तो z² कितना हो गया आपका 4, ठीक है, बिकॉज ये राइटबर्ग से राइटबर्ग कैंसिल हो गया, आपका z² कितना हो गया 4, तो z की वैल्यू आपकी इतनी आ गई 2 आ गई यहाँ से, ठीक है, तो हमारे को z यहाँ से 2 मिल गया। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट, नाउ वेवलेंथ हमने निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वेवलेंथ ना विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज z यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, z² RCH 1/n² मीन्स 1² माइनस 1/2², ठीक है, टू गेट द वैल्यू, ठीक है, तो हमने यही किया 1/n² माइनस 1/2², तो पुटिंग दिस वैल्यू R² ZCH 1 माइनस 1/4 3/4 z² RCH आ गया। ये हेयर यू पुट द वैल्यू z की वैल्यू 2 डाल दो, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 राइटबर्ग, ठीक है, 3 राइटबर्ग इज आंसर फॉर दिस। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ राइटबर्ग हेयर, ठीक है, हमारे को यहाँ पे लैम्डा चाहिए ना, तो दिस एनर्जी डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज़ दिस एनर्जी डिफरेंस इज गोइंग टू गिव यू बिकॉज इट इज़ गॉट एक्साइटेड, यहाँ से ये 2 से 1 पे आया, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आया, वी हैव गॉट द एनर्जी डिफरेंस, हमारा इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस आ गया। नाउ दिस एनर्जी डिफरेंस जो होगा दैट इज़ नथिंग बट योर h न्यू, ठीक है, आपका जो रेडिएशन निकला होगा, सो विल इक्वेटेड HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 राइटबर्ग। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ राइटबर्ग 2.2 इंटू 10⁻19, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे लैम्डा इज ओनली अननोन, ठीक है, तो लैम्डा हम निकाल लेंगे, हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 301.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ HC और हमारे पास राइटबर्ग की वैल्यू, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ सेकंड में क्या कहना है, मेरे को रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट वी नो वी हैव सीन इन आवर बोर्स के फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट से, वी नो कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई me² z, ठीक है, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है, तो यहाँ पे n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट h² डिवाइडेड बाई पाई me² इंटू z, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एक दिया हुआ है बोर्स रेडियस दे रखा है, बोर्स रेडियस का मतलब हो गया z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम का दे रखा है, तो z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, ठीक है, z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ तो मेरे को ये वाली जो टर्म दे रखी है, दिस टर्म इज़ बीन गिवन टू मी दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻11. Now this term is going to come in our radius for the hydrogen atom also, तो we will utilize this term and put the value here, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 के लिए और z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, z की वैल्यू 4 आई है, तो दैट 2 आई हुई है, तो 2 यहाँ पे डाला हमने, एंड हेयर वी पुट ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास बोर्स रेडियस से हमने निकाल ली, दैट इज़ 5 इंटू 10⁻11. नाउ दिस डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो विल गेट 2.5 इंटू 10⁻11 इज द रेडियस, ठीक है। Now we'll see the next question. So light from the discharge tube containing the hydrogen atom falls on the surface of the piece of the sodium, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम्स का ट्रांजिशन हुआ होगा कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट निकली, फोटोन निकला, एंड दैट फोटोन इज गोइंग टू हिट ऑन द सोडियम. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सोडियम इज दिस मच, ठीक है, सोडियम से इतना फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आफ्टर द एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद. वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज बीन गिवन, तो यहाँ से मेरे को इन दोनों से मेरे को क्या निकल जाएगी, जो मेरी h न्यू आएगी, जितनी वैल्यू का मेरा फोटोन निकला है, दैट शुड बी इक्वल टू योर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम दे रखी है, मैक्सिमम की कितनी ये है, और आपका वर्क फंक्शन ये है, तो आपके पास h न्यू आ जाएगा जितना आपका फोटोन इस पर गिर रहा है, तो h न्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ये टोटल वैल्यू हमारे पास ये आ गई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो एनर्जी ऑफ द फोटोन आ गई हमारे पास जो निकालनी थी। सेकंड हमें निकालना है क्वांटम नंबर बिटवीन दिस टू लेवल, ठीक है। मेरे को क्वांटम नंबर निकालना है टू गेट दिस एनर्जी कि बिकॉज हमारा किसी एनर्जी ट्रांजिशन हुआ होगा ना, द एनर्जी ट्रांजिशन हुआ होगा फ्रॉम हायर टू लोअर, देन ओनली वी हैव गॉट दिस लाइट इज बीन डिस्चार्ज एंड दिस लाइट देन फॉल ऑन द सोडियम। तो अब एनर्जी ट्रांजिशन में देखना है मेरे को कि बिकॉज मेरा फोटोन में एग्जैक्ट एनर्जी ट्रांजिशन चाहिए, तो विल सी द एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हमारी एनर्जी ट्रांजिशन कितनी होती है, -13.6 Z²/n², Z की वैल्यू 1 हो गई। तो दिस इज, तो फर्स्ट के लिए 13.6, 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए। अगर हम देखें हम दोनों में मेन में 2 में डिफरेंस किस में आ रहा है, अगर हम 2 और 4 में देखें तो वी सी एग्जैक्ट डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज कम्स आउट टू बी 2.55, ठीक है। तो विल से कि इट हैज़ बीन फॉलन फ्रॉम 4 से 2 पे फॉल किया है, ठीक है। इट हैज़ बीन फॉलन फ्रॉम 4 से 2 एंड वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट डिफरेंस 2.55, ठीक है। तो हमारे जो क्वांटम नंबर आ रहे हैं 2 लेवल के 4 से 2 पे फॉल आउट किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितनी होती है एंगुलर मोमेंटम, VR इज इक्वल टू NH/2π एंड H/2π, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 डाल दो फॉर एंगुलर मोमेंटम इन द फोर्थ ऑर्बिट एंड n की वैल्यू 2 डाल दो टू गेट इट इन टू द सेकेंड ऑर्बिट। सो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो विल गेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू H/π। Now we have to find out the recoiling speed of the emitting atom assuming to be rest before the collision. So we have to find out कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है जब उसने यहाँ से H न्यू यहाँ से मेरा फोटोन निकला तो बिकॉज इट वॉज इनिशियली एट रेस्ट, जब ये यहाँ से निकला होगा तो मोमेंटम नीड्स टू बी कंजर्व, तो इट हैज़ मूव्ड हेयर सम विद सम वेलोसिटी बिकॉज आई नीड टू मेंटेन द मोमेंटम। मोमेंटम को इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनल मोमेंटम भी रेस्ट पे होनी चाहिए। तो नाउ H न्यू जो फोटोन की मोमेंटम किस तरीके से दी जाती है, दैट इज एनर्जी बाई C, ठीक है। दैट इज़ अ फोटोन की मोमेंटम प्लस हमारा ये जो मास ऑफ योर हाइड्रोजन इज बिन मूविंग हेयर विद सम वेलोसिटी V, तो वी कैन राइट डाउन प्लस mv इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर एनर्जी इसका हम निकाल सकते हैं, H न्यू लिख सकते हैं इसको, एनर्जी को डिवाइडेड बाय C प्लस mv इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ V। दिस वैल्यू ऑफ V इज नथिंग बट -hv डिवाइड बाय Cm। H न्यू हमारे को निकाल दे ही रखा है थ्रू 2.55, C ये है 3 इंटू 10⁸ और मास ऑफ योर हाइड्रोजन एटम इज नथिंग बट प्रोटॉन का मास, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इससे हमारी जो एटम की स्पीड आ गई दैट इज -0.814 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट दिस एटम द हाइड्रोजन इज बिन मूविंग, राइट। विल लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है मेरा, टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स A एंड B आर ऑफ डिफरेंट मासेस, ठीक है। यहाँ पे मासेस डिफरेंट है एंड ईच ऑफ देम इज कंटेनिंग द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मासेस डिफरेंट है बट दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास क्या होता है आपका, एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ योर प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ योर न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास, ठीक है। बट ये नंबर दोनों के सेम दे रखे हैं हमारे को यहाँ पे एंड दे आर हैविंग अ डिफरेंट मासेस, ठीक है। नंबर इन दोनों के सेम दे रखे हैं, दैट मीन्स आपके सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है ना, एटॉमिक मास ऑफ योर A दैट इज जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास ऑफ माई प्रोटॉन प्लस मास ऑफ माई न्यूट्रॉन। अब नंबर यहाँ पे इन दोनों का सेम दे रखा है मेरे को, जैसे यहाँ पे अगर 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, तो वी कैन राइट इट डाउन 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों इक्वल नंबर है तो दोनों इक्वल नंबर हो गए, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ Z इंटू, बिकॉज इसका कितना होगा Z इंटू Z हो जाएगा इसका ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इंटू A, ठीक है। तो एटॉमिक मास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी हमारे को ये दे रखा है, तो अगर मेरा एटॉमिक मास ऑफ B देखूँ तो दैट इज़ ऑल्सो मास ऑफ माई प्रोटॉन प्लस मास ऑफ माई न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेरे को सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो वी से के दिस नंबर ऑफ बिकॉज मास इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, तो हेयर ऑल्सो वी कैन राइट इट डाउन 2 टाइम्स ऑफ। अब ये B का मेरा यहाँ पे आएगा ना प्रोटॉन, ठीक है। दिस प्रोटॉन इज डिफरेंट, जो B हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम है उसका प्रोटॉन विल बी डिफरेंट, तो 2 टाइम्स ऑफ Z भी हो जाएगा ये जो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों का नंबर सेम दे रखा है सो इट विल बी इक्वल, ठीक है, दोनों का। तो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर डिफरेंट होते हैं देन यू कैन नॉट हैव द सेम 2 टाइम्स ऑफ Z भी नहीं लिख सकते, बिकॉज वी हैव टू टेक, ये हो जाता है आपका मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास सबको लेना पड़ता एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास लेना पड़ता आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तब ये अलग अलग नंबर होते हैं ये वाले, ठीक है। अब ये दोनों नंबर सेम है एंड दिस सपोज दिस इज़ 3 दिस इज़ 3 एंड तो वी कैन टेक 3 टाइम्स ऑफ, और ये दोनों इक्वल
ऑलमोस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, इन दोनों के मास इक्वल होते हैं, तो वी कैन राइट इट डाउन मास ऑफ प्रोटॉन ओनली, ठीक है. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है. सो हमें यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, तो ए का जो हमारे को इफ़ यू टेक ए का हमारा जो एटॉमिक नंबर है, इफ़ यू टेक इट जेड ए, और बी का एटॉमिक नंबर वी आर टेकिंग इट जेड बी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे को, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट बामर, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट बामर लाइन एमिटेड बाय द ए एंड बी, ठीक है. अब मेरे को बामर लाइन से वी नो द रिलेशन ट्रांजिशन इन द बामर लाइन, ठीक है. द ट्रांजिशन बामर लाइन मतलब कि आपका सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड पे आ रहा है. बामर में हमारा नहीं, सॉरी, बामर में हमारा हायर से 2 पे आता है. 2 इज़ माई लोएस्ट वन, ठीक है. तो हायर से 2 पे आता है, तो फर्स्ट बामर लाइन का मतलब मेरा 3 से 2 पे गिर रहा है दोनों के लिए. और एनर्जी ट्रांजिशन में वी नो देयर इज़ एनर्जी, सो एनर्जी ट्रांजिशन में वी नो दैट इज आर एनर्जी ट्रांजिशन जेड स्क्वायर 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर. यहाँ पे जेड इज़ अननोन, एन इज़ नाउ नोन, एन इज़ वी नो. तो हमारा जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, पहले के लिए निकालते हैं बामर लाइन, ठीक है. फर्स्ट के लिए बामर लाइन निकाली, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन डेल्टा ई बनाया, ठीक है, माइनस जेड ए स्क्वायर दैट इज अननोन 13.6, और कहाँ से कहाँ पे गिरा 3 से 2, बिकॉज फर्स्ट लाइन दे रखा है हमारे को फर्स्ट लाइन, ठीक है. तो 3 से 2 पे, तो वी कैन गेट दिस वैल्यू डेल्टा ई वन. सेम वे डेल्टा ई टू निकालेंगे फॉर जेड बी. तो यहाँ से इन दोनों के बीच में मेरे को डिफरेंस दे रखा है दैट इज़ 5.67. तो मेरा एक यहाँ पे रिलेशनशिप आ जाएगा जेड ए और जेड बी के बीच में. तो डेल्टा E1 माइनस डेल्टा E2 दैट इज इक्वल टू 5.667 ZB माइनस जेड ए स्क्वायर, और ये मेरा ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है. तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग दिस वी हैव गॉट फर्स्ट रिलेशन दैट इज ZB माइनस जेड ए इज इक्वल टू 3, ठीक है. दैट इज़ आवर फर्स्ट रिलेशन, ठीक है. अब सेकंड रिलेशन निकालते हैं. यहाँ पे अब फर्दर क्या रखा है, व्हेन द एटम ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, एंड स्ट्राइक द हैवी टारगेट, दे रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी. तो ये मेरा हैवी टारगेट है, ये मेरा ए मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मेरा हैवी टारगेट है, ये मेरा बी मूव कर रहा है. व्हेन दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है, ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, देन व्हेन दे स्ट्राइक इट दे रिबाउंड, ठीक है, दे रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, दे रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाते हैं, ठीक है. तो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम हियर. मोमेंटम कंजर्व करके वी कुड एबल टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मासेस, ठीक है. मोमेंटम कंजर्व करते हैं इसके, एंगुलर मोमेंटम. तो आफ्टर कोलिजन मे बी वी टेक द मास ए इज़ मूविंग विद v1 एंड मास 2 इज़ मूविंग विद v2, ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई, मास है कि ma इंटू यू, और सो टारगेट दिस इज सॉरी हेयर यहाँ पे जो v1 एंड v2 इज़ फॉर द टारगेट के व्हेन बिकॉज ये तो हमारे को दे रखा है ना, ये u से जा रहा है और ये u से हिट करके रिटर्न हो रहा है, बट ये टारगेट वी आर टेकिंग मूविंग विद v1, ठीक है. सेम वे ये a हो गया. सेम वे b जो मेरा सेम वेलोसिटी से जा रहा है, दिस b, और टारगेट से हिट करके इट इज़ रीबाउंसिंग विद द सेम वेलोसिटी u, ठीक है, और ये मेरा सपोज v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है. सो नाउ विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ योर a इज मास ऑफ a इंटू यू, दैट विल बी इक्वल टू आपका जो टारगेट है, टारगेट इज मूविंग का मास m है एंड इट इज मूविंग विद v1, ठीक है. और हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द प्रोसेस द एटम बी इम्पार्ट्स ट्वाइस द मोमेंटम टू द टारगेट देन ए, ठीक है. हमारे को रिलेशनशिप दे रखा है, मोमेंटम ट्वाइस द मोमेंटम इट इज़ गोइंग टू गिव ट्वाइस द मोमेंटम, ठीक है. ये रिलेशन दे रखा है. तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं पहले. तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज mv1 इज माइनस बिकॉज रिबाउंड हो रहा है ये जस्ट, ठीक है. तो ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास पहला रिलेशन आ गया. इन द प्रोसेस ये जो टारगेट एटम बी जो इम्पार्ट कर रहा है मोमेंटम टू द टारगेट इट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ टारगेट ए, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे एटम ए ने कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करी टू द टारगेट इज mv1, ठीक है. नाउ एटम बी की भी निकालते हैं इसी तरीके से. सिमिलरली इफ़ यू पुट फॉर द एटम बी की भी हमारी mv2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बिकॉज रिबाउंड हुआ होगा, तो ये हमारी 2 टाइम्स ऑफ mbu आ गई. अब इन दोनों में हमारे को रिलेशनशिप दे रखा है. ये जो मोमेंटम ट्रांसफर करी है इसने, दिस मोमेंटम ये जो मोमेंटम ट्रांसफर करी है इसका 2 टाइम्स ऑफ दिस है, 2 टाइम्स ऑफ mv1 इज इक्वल टू mv2. तो mv2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mv1. नाउ विल पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है. ये वाली वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास मास में रिलेशनशिप आ गई, ठीक है. और मास में हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप यहाँ से निकाल ली थी, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है. तो हमारे पास मास में रिलेशनशिप आ गई. ये कैंसिल करेंगे, 2 हो गया, तो यहाँ पे u से u कैंसिल, तो हमारे पास मास में रिलेशन आ गई mb इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ma, ठीक है. ये हो गई बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट z की वैल्यूज़ निकालनी थी, आइडेंटिफाई द एटम, ठीक है. z की वैल्यू के लिए हमारे को पहली तो इक्वेशन ही आ गई. सेकंड इक्वेशन हम ये मास से निकाल लेते हैं, ये कंडीशन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो दे रखे हैं, ठीक है. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इस हमारा एटॉमिक मास क्या होता है आपका, मास टोटल मास ऑफ योर टोटल मास ऑफ योर प्रोटॉन प्लस मास ऑफ योर न्यूट्रॉन. अब जब दोनों के टोटल नंबर इक्वल हैं तो वी कैन टेक इट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को यू कैन राइट इट डाउन 2 टाइम्स ऑफ जेड
ऑफ अब जो भी प्रोटॉन का है, आपका ए का प्रोटॉन है, बी का प्रोटॉन है, 2 टाइम्स ऑफ जेड बी, तो ए को हम लिख सकते हैं ए ऑफ ए को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ जेड ए, एंड ए ऑफ बी को लिख सकते हैं मास ऑफ एटॉमिक मास लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ जेड बी, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ माई B, that is 2 times of ZB. Same way atomic mass of A is 2 times of ZA. Now I know the relationship here. I'll put this value here. तो हमारे पास ZB और ZA में एक और relation आ जाएगा. Now put this relation back in this and we have got ZA comes out to be 1, ZB comes out to be 2. ठीक है. तो हमारे पास ZA और ZB में we have got the values. ठीक है. Right. We'll see the next question. So यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन योर अपना टॉर्क एंड योर, हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था उसके बेसिस पे इनर मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर्स में जब देख रहे थे, सो उसके बेसिस पे एंड इसका अपना इलेक्ट्रॉन मूविंग के ऊपर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इट्स बीन मिक्स्ड अप. सो विल सी. सो यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इट्स बीन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज इन द सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज इन द सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इलेक्ट्रॉन इज बीन मूविंग. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, आई इंटू ए एन आई ए. तो एन सिंगल मोमेंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट आई इंटू ए. ठीक है, आई को आप क्या लिख सकते हो, आई इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टोटल जो आपका रिवॉल्यूशन में ले रहा है. ठीक है, पूरा रिवॉल्व करने में जो जितना ले रहा है टाइम. ठीक है, तो दैट इज़ क्यू बाई टी इज़ नथिंग बट योर करंट इनटू ए. ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये आर आपको दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्यू और टी में रिलेशन निकालना है. ये टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी, तो क्यू इंटू एफ इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया. तो आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ माई एफ. ठीक है, नाउ विल यूज़ द बोस एक्सप्रेशन. ठीक है, हाइड्रोजन एटम है हमारा ग्राउंड स्टेट, विल यूज़ द बोस एक्सप्रेशन. ठीक है, बोस का हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो एम वी आर इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ से वेलोसिटी में हमारा रिलेशन आ जाएगा. वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर. ओमेगा क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई एफ इंटू आर. ठीक है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ. ठीक है, because it has been revolving around it in the circular orbit, so we can write it down 2 pi f into r. ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. so that is what we will do. so m into 2 pi f into r is equal to n फर्स्ट ऑर्बिट में है h over 2 pi, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी r डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर. तो दिस फ्रीक्वेंसी यू जस्ट पुट इट हेयर टू गेट द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपकी आ गई e h over 4 पाई m. ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहा है मैंने, एन एटम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी में रख दिया एटम को, सच दैट द प्लेन इज नॉर्मल, सच दैट द प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का प्लेन. ठीक है, इससे जो बी का एंगल है दैट इज माई 30 डिग्री. ठीक है, तो नाउ वी नो टॉर्क क्या होती है आपकी, टॉर्क इज एम क्रॉस बी होती है, एम क्रॉस बी. ठीक है, और एम जो होता है दैट इज दिस, ये हमारी एम की डायरेक्शन थी जो हमारी आई की थी, एम क्रॉस बी अगर हम करेंगे सो विल गेट एम क्रॉस बी अगर हम करेंगे विल गेट द टॉर्क. ठीक है, सो टॉर्क इज एम बी साइन थीटा हो गया हमारा. ठीक है, अब नाउ थीटा इज बीन गिवन टू अस 30 डिग्री, विल पुट द वैल्यू. ठीक है, एम हमारे से यहाँ से आ गया, बी हमारे को दे रखा है 30 डिग्री हो गया, तो विल गेट द टॉर्क का हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. राइट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. सो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, assume a de Broglie wave associated with the electron can form a standing wave pattern between the atoms arranged in the one dimensional array. ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है दे आर फॉर्मिंग अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न. ठीक है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहे हैं बिटवीन द एरे ऑफ. ठीक है, इस तरीके से बन रहा होगा, एंड बिटवीन द, ये मेरे को दे रखा है बिटवीन द वन डायमेंशनल एरे विद द नोड्स एट ईच एटॉमिक साइट्स. ठीक है, तो ये सपोज दीज आर द एटॉमिक साइट्स, तो इसके बीच में वी डोंट नो कि स्टैंडिंग वेव्स के लूप कितने हैं, बट ये नोड है एंड दिस इज नोड, और नोड के बीच में मुझे पता है दैट इज ऑलवेज लैम्डा बाई 2. तो यहाँ पे कितने बना रहे हैं आई डोंट नो, तो आई कैन राइट इट डाउन एन लैम्डा बाई 2. ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस वी कैन राइट इट डाउन एन लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो इट इज़ फाउंड दैट वन सच स्टैंडिंग वेव्स इज फॉर्म्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एरेज 2 एंगस्ट्रॉम. तो पहले में मेरे को देखा दिस डिस्टेंस इज 2 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2. ठीक है, पहला हमारा ये आ जाएगा. सेकेंड हमारे को क्या देखा, अ सिमिलर स्टैंडिंग वेव्स इज अगेन फॉर्म्ड इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू. अगर मेरा जो पहले डिस्टेंस था 2
2 एंगस्ट्रॉम था, इसमें भी नंबर ऑफ, ये आपका नोड है तो इस पर नंबर ऑफ लूप्स, वी डोंट नो द नंबर ऑफ लूप्स, सो वी टेक इट n। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा था 2 एंगस्ट्रॉम के लिए n लैम्डा बाई 2 बन रहा था, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि मेरे को नेक्स्ट जो दे रहा है मेरा d, दैट इज़ गिविंग मी 2.5 पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा 2.5 पे वी आर गेटिंग अनदर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट पे 2.5 पे वी आर गेटिंग द नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव्स, बीच में कोई नहीं मिल रही, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेरे n फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरे n+1 फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे n+1 फॉर्म हो रहे होंगे, यहाँ पे ज़्यादा ही बना दिया तो ये हो गया, ये कैंसिल कर दो, ये वाला हो गया आपका। सो दिस इज़ योर 2.5 हो गया, ठीक है। तो हमने जैसे ही हमने 2.5 किया यहाँ पे 2.5 इंक्रीज, d इज इंक्रीज टू 2.5, यू विल नॉट गेट एनी इंटरमीडिएट वैल्यू फॉर द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। ओनली द नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव्स के जो मिल रही है आपको, दैट यू आर गेटिंग इट एट 2.5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू योर 2.5, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव्स, नेक्स्ट लूप जो बन रहा है आपका, इस पर 2.5 पे बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से हमारा लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लैम्डा आ जाएगा तो आपकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो विल फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन वोल्ट, and at least and the least value of d for which the standing waves for which the standing wave of the type described can form, ठीक है। we have to find out the least value के लिए क्या होगा आपका n is equal to 1, ठीक है। अगर आपका लैम्डा आ जाएगा तो n is equal to 1 कितना हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, d will be this one। जब एक ही मेरा बन रहा है तो दिस विल बी नथिंग बट लैम्डा बाई 2, लैम्डा आप निकाल लोगे तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपकी लीस्ट वैल्यू ऑफ d आ जाएगी। अब हमारे को एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी निकालते हैं हम। सो स्टैंडिंग वेव्स दो नोड्स के बीच में वी नो इट इज लैम्डा बाई 2, डी मेरे को दे रखा है लैम्डा बाई 2 और डी डैश जो दे रखा है दैट इज़ 2.5, ठीक है, दैट इज़ n+1 लैम्डा बाई 2। उसके बीच में कोई मेरी स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही, तो दैट मीन्स जो कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव बन रही है आपकी n+1 वाली, दैट इज़ एट डी डैश पे। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा आ गया तो आपका लीस्ट वैल्यू ऑफ डी आ गई, दैट इज़ लैम्डा बाई 2.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा आ गया आपका। नाउ एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, energy of your electron you can hc by lambda इलेक्ट्रॉन की है, तो विल टेक एनर्जी ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन एज p स्क्वायर बाई 2m। पावर इसको डी ब्रॉय वेवलेंथ में मोमेंटम कितनी होती है आपकी h बाई ये h बाई मोमेंटम कितनी, h बाई लैम्डा, सॉरी h बाई लैम्डा होती है, ठीक है। तो ये हो गया h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2 इंटू m। नाउ वी पुट द वैल्यूज हेयर, h स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू डाल दो, लैम्डा हमने यहाँ से निकाल दिया, वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। एनर्जी आ जाएगी आपकी 2.416 10 टू द पावर -13, दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -13 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट द 151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमारे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए थी, तो 151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, और ये हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ डी हमने यहाँ से निकाल ही ली है, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted when a 400 nanometer radiation is incident on the surface with a work function this, ठीक है। तो हमारे को h न्यू दे रखा है और हमारे को वर्क फंक्शन दे रखा है। तो these फोटो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, दे आर गोइंग टू पास थ्रू अ रीजन कंटेनिंग द अल्फा पार्टिकल। हम मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद एन अल्फा पार्टिकल। मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो हमारा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन जो हो जाएगा, उससे मैक्सिमम एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ पे लैम्डा आपको दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एच सी बाई लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, और वर्क फंक्शन आपको 1.9 दे रखा है, तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, दिस गोइंग टू गेट बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल से कंबाइन कर रहा है एंड टू फॉर्म अ हीलियम आयन, ठीक है। यहाँ पे मेरा हीलियम आयन बन रहा है, ठीक है, दिस हीलियम आयन वी आर गेटिंग इट नाउ एमिटिंग अ सिंगल फोटोन इन द प्रोसेस, ठीक है। ये हीलियम आयन बन रहा है प्लस एक फोटोन निकल रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। नाउ हीलियम आयन दस फॉर्म्ड इज इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। जो हीलियम आयन है इज इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो हीलियम आयन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज ई फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 5। नाउ हीलियम आयन की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। z की वैल्यू आपकी 2 हो गई हीलियम आयन की, और n की वैल्यू आपकी 5 स्क्वायर हो गई, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू हमारे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा -2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ जाएगी, ठीक है। दिस इज एट -2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाँ, आई नो ये मेरा रेस्ट पे अल्फा पार्टिकल, तो इसकी एनर्जी विल बी 0। इसकी एनर्जी मुझे पता है दैट इज दिस, तो वी कैन कंजर्व द एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो हमारे को फाइनली पूछा गया फाइंड द एनर्जीज इन ईवी ऑफ द फोटोन लाइंग बिटवीन, मेरे को फोटोन की एनर्जी निकालनी है लाइंग बिटवीन 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज लाइकली टू बी एमिटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन तो वी कैन फाइंड आउट कि N5 पे था अभी। ठीक है, N5 से ट्रांजिशन होकर कहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा क्या है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन में एक ये फोटोन निकला। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो स्टेट हो गई N5 वाली, नाउ ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फ्रॉम दिस स्टेट ये एक्साइटेड स्टेट में इट कैन फॉल डाउन टू एनी एनर्जी लेवल पे गिर सकता है। इट कैन फॉल डाउन टू एनर्जी कोई भी एनर्जी लेवल पे गिर सकता है विच कैन गिव द, यहाँ से फिर फोटोन निकल सकता है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दोज फोटोन बिटवीन विच इज़ देयर बिटवीन 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आफ्टर कॉम्बिनेशन वाला है। ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन मेरा ये वाला फोटोन निकल रहा है, इस फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। तो इस फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज मेरे को इसकी एनर्जी पता है, ये मेरा 0 पे है, इसकी एनर्जी मुझे पता लग गई 5th पे है, दैट इज़ दिस, फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट विल डू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी इसमें। ठीक है, तो 1.2 प्लस इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी -2.16 और ई लैम्डा हमारे को फोटोन की निकालनी है। तो यहाँ से हमारी जो फोटोन की एनर्जी आ गई, एनर्जी ऑफ द फोटोन ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन वाली। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाली आ गई। अब क्या है आपकी एनर्जी, ये 5th स्टेट पे है, तो इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन टू लोअर स्टेट। जब वो लोअर स्टेट पे गिरेगा तो फोटोन रिलीज होगा। नाउ विल फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, हीलियम आयन की एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, सो हीलियम आयन की एनर्जी विल बी -13.64 डिवाइड बाय n²। ठीक है, तो नाउ विल फाइंड आउट के डिफरेंट लेवल पे इसकी एनर्जी कितनी है। तो दिस विल पुट वैल्यू ऑफ NS1, 1 पे ये एनर्जी हो गई, 2 पे ये एनर्जी हो गई, n की वैल्यू 2 पे, n की वैल्यू लेवल 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट, सो हमें इसकी तो हमें अप टू 5 तक ही चाहिए, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बट निवेश इनके बीच में वी हैव टू फाइंड आउट कि ट्रांजिशन जो होगा मेरा। ठीक है, तो ट्रांजिशन शुड हैपन वेयर आई विल गेट द फोटोन जो निकलेंगे मेरे 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहला अगर हम देखें तो ट्रांजिशन ये वाला भी हो सकता है एंड ये वाला भी हो सकता है। नहीं, ये इसमें 2 से 4 नहीं मिलेगा हमारे को। तो ट्रांजिशन हमारे को एक तो ये वाला मिल सकता है और एक ये वाला मिल सकता है 2 से 4 के बीच में। ठीक है, तो दैट मीन्स ये अभी 5th स्टेट पे है। ठीक है, वी हैव सीन इट इज़ इन द 5th स्टेट। तो यहाँ से गिर के इट कैन फॉल डाउन टू, सो यहाँ से हमारे को जो 2 और 4 के बीच में मिल सकता है, एक तो इन दोनों एनर्जी गैप से मिल सकता है। ठीक है, सो इट कैन फॉल डाउन फ्रॉम दिस टू दिस। सेकंड जो एनर्जी गैप से मिल सकता है, यहाँ से जो गिरा होगा उससे नहीं निकला होगा, बट यहाँ से जो गिर के आया होगा 3.4 से 6.4 तक जो गिर के आया होगा, उससे मेरे को 2 और 4 के बीच में फोटोन मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज इफ यू सी कि इन दोनों का एनर्जी गैप, और कोई भी एनर्जी गैप देखोगे आप, इन दोनों में देखोगे 2 और 4 से ज़्यादा होगा, आप इन दोनों में देखोगे 2 और 4 से ज़्यादा होगा, इन दोनों में देखोगे 2 और 4 से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जो हमारे को 2 और 4 के बीच में एनर्जी गैप मिलेगा कि जब मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज एट दिस स्टेट, 5th स्टेट में था, ये गिर के यहाँ पे जाएगा तो मेरे को 2 और 4 के बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जब ये, और या फिर ये यहाँ से यहाँ पे गिर सकता है, तो दिस यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है, तो पहला तो आपके पास ये वाला आ गया। ठीक है, 2.16 से यू हैव फॉलन डाउन, तो इनिशियल आपका ये था, फाइनली ये था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.86, दैट इज बिटवीन योर 2 to 4। ठीक है, सेकेंड आपका पहले क्या गिरा, ये यहाँ से यहाँ पे एक फोटोन रिलीज किया होगा, फिर ये जब यहाँ से यहाँ पे गिरा होगा देन अनदर फोटोन यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है, तो सेकंड फोटोन यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो इनिशियल ये, फाइनल ये, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कम्स आउट टू इक्वल टू 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड फोटोन इज दिस मच। सो दीज आर द ओनली 2 फोटोन दैट वी आर गोइंग टू गेट इट आफ्टर कॉम्बिनेशन। दीज आर द ओनली 2 फोटोन विच आर गोइंग टू गेट एमिटेड। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, एन इलेक्ट्रॉन इज ए हाइड्रोजन लाइक एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट एंड एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम पे है एंड मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द nth ऑर्बिट एंड एमिट ए रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइमन सीरीज। ठीक है, सो दैट मीन्स nth से आ रहा है, लाइमन सीरीज का मतलब हो गया फाइनल n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज माई फाइनल लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम का हो गया मेरा 1/λ z² इंटू r, 1/, ये फाइनल लाइमन के लिए 1 हो गया और n से गिर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा मेरे को क्या कह रहा है, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो यहाँ पे कह रहा है मेरा, इफ़ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ठीक है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इन द nth ऑर्बिट वी कैन यूज दिस बिकॉज डी ब्रॉय वेवलेंथ का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, वी हैव सीन इट इन आर डोल नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वर्क्स एज ए स्टैंडिंग वेव्स। तो यहाँ पे डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर, so from the here
बिकॉज इट इज़ हमारे यहाँ पे इट इज़ फॉर्म लाइक अ स्टैंडिंग वेव ना, तो स्टैंडिंग वेव में हमने देखा था दिस इज़ 2πr_n, ठीक है। किस वाले ऑर्बिट में? इट विल टेक ओनली दोज ऑर्बिट्स वेयर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और होगा, रेजोनेंस और होगा, ठीक है। तो 2πr_n इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा दैट इज माई डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज माई डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड फॉर द nth ऑर्बिट, ठीक है, फॉर द nth ऑर्बिट बिकॉज स्टैंडिंग वेव बनती है ना हमारी, स्टैंडिंग वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट। अब यहाँ पे जो Rn है, दिस Rn वी कैन पुट दिस वैल्यू, हमने जो बोर्स फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट से निकाला था, विल पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा में सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू 2πr_n इज इक्वल टू n लैम्डा, Rn की वैल्यू आप ये पुट कर दो, ठीक है। एंड फ्रॉम एयर 1/λ आप ये निकाल लो, तो दिस इज योर सेकंड लैम्डा, ठीक है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ यू इक्वेट बोथ द इक्वेशन, ठीक है, एंड यू पुट द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू रख दो यहाँ पे। R जो होता है आपका राइट पर कॉन्स्टेंट, यू नो वी नो इट इज़ m(4) 8 epsilon naught square into CH3, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, R की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी एंड दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। वी हैव गॉट 1 माइनस ये एंड 1 माइनस 1/n² आ गया इससे, ठीक है। एंड हेयर वी हैव गॉट 4 epsilon naught CH(n)(e)² into z, ठीक है। ये सेकेंड आ गई। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू, इन सब की वैल्यू डाल दो, एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दो, c की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू डाल दो, n इज अननोन टू अस, ठीक है। e² की वैल्यू डाल दो और z हमारे को 11 दे रखा है, z की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू हमारे को ये n की वैल्यू बतानी है, तो n इज़ द ओनली अननोन। पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी n में 25/n, ठीक है। तो इफ़ यू सी कि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, विल करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो रूट्स आएंगे, नेगेटिव रूट, यू अवॉइड दैट नेगेटिव रूट, वी कैन टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ n। तो पॉजिटिव रूट हमारा जो आएगा, अगर हम इसको देखें, दैट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये वाली जो टर्म आएगी दैट इज कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 25, ठीक है, बिकॉज इट इज़ 4 ओनली और इधर 625, तो वी कैन टेक इट ऑलमोस्ट इक्वल टू 625 और उसका रूट 25। तो 25 माइनस वाली टर्म हटा रहे हैं हम, पॉजिटिव वाली ले रहे हैं, तो 25 + 25 डिवाइड बाई 2 आपको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n कम्स आउट टू बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। राइट, विल सी दिस लास्ट टू क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़ E1, ठीक है। दिस इज मिनिमम व्हेन द इट इज़ कोलाइडेड विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द आयनाइजेशन मीन्स के हाइड्रोजन एटम के 1 से इन्फाइनाइट n पे ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके मिनिमम एनर्जी ये है। इफ़ इट्स कोलाइडिंग विद द हाइड्रोजन एटम से जब ये कोलाइड, हाइड्रोजन आयन से जब कोलाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी E2 लग रही है। जब E3 कौन सी है, जब मैं हीलियम आयन से कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मास के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना हैवी मास होगा उतना ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू कैरी द एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमारे को एनर्जी में रिलेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी 3 विल बी ग्रेटर देन एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन एनर्जी 1, ठीक है। सो दैट इज़ विल बी देयर, ठीक है। बट अदरवाइज इसको प्रोसेस के साथ देखना है, तो विल सी इट लाइक दिस, बिकॉज हमने देखा था एटॉमिक कोलिजन में आयनाइजेशन क्या होता है, व्हेन एवर देयर इज अ इनलास्टिक कोलिजन, जब भी हमारा इनलास्टिक कोलिजन होता है तब आयनाइजेशन होता है हमारा, ठीक है। तो इफ़ यू सी मोमेंटम कंजर्व करें अगर हम, इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन, इफ़ वी आर टेकिंग इनिशियल, हम इसको एम लेके चल रहे हैं बस इसे, ठीक है। दिस वी हैव टू सी, दिस m पे डिपेंड करेगा हमारा, बिकॉज दिस m इज़ डिफरेंट फॉर हाइड्रोजन, दिस m इज़ डिफरेंट फॉर हीलियम आयन एंड दिस m इज़ डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो mv0 इनिशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, इनिशियल मोमेंटम हो गई, दैट इज इक्वल टू m प्लस, यहाँ पे वी आर टेकिंग परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन लेके चल रहे हैं, तो m प्लस ये सारी की सारी आपकी जो एनर्जी थी डेल्टा ई जो होगी आपकी लॉस एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन एक्साइटेशन, एटॉमिक एक्साइटेशन में यूज़ हो जाएगी। तो m प्लस mh दैट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, परफेक्टली इनलास्टिक ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका देखेंगे जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, m प्लस mh इंटू u², क्या है आपका, दिस इज दिस, ठीक है, यहाँ से u²। तो अगर इफ़ यू टेक के जो आपका डेल्टा ई, इसको आई कैन राइट इट डाउन डेल्टा ई, ठीक है। इफ़ यू पुट दिस वैल्यू डेल्टा ई, नाउ इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ u² हेयर, ठीक है, u² की वैल्यू डालोगे तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू mh डिवाइडेड mh प्लस mh इंटू E0 आ जाएगा, ठीक है। दिस E0 इज हियर दिस एनर्जी, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी E0 को नीचे ले जाओगे तो आपकी डेल्टा ई जो होगी दैट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर योर एक्साइटेशन ओनली। तो इफ़ यू सी यहाँ पे हमारे पास, इफ़ यू यहाँ पे आपका डेल्टा ई बाई ई आ गया और यहाँ पे mh से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस m/mh, ठीक है। नाउ दिस इफ़ यू सी डेल्टा ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। जितना ज़्यादा मेरा m होगा,
जितना स्मॉल m होगा उतना मेरा डेल्टा ई ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना डेल्टा ई ज़्यादा होगा उतना मेरा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m स्मॉलर विल बी योर काइनेटिक, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी स्मॉलर विल बी योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्मॉलर विल द काइनेटिक एनर्जी फॉर द आयनाइजेशन। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m स्मॉलर विद द काइनेटिक एनर्जी फॉर द, जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतनी छोटी आपकी ये आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। देन यहाँ पे याद रखा E3 मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ E1। तो ये यहाँ पे डेल्टा ई जो है आपका दिस इज़, तो इट डिपेंड्स अपॉन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सो जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी, जितना ये जितना बड़ा मेरा मास होगा, ग्रेटर द मास, ठीक है, जितना बड़ा ये मास होगा उतनी आपको डेल्टा ई छोटी चाहिए होगी, ठीक है। स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन। तो इट शुड बी E1 के केस में आपको सबसे ज़्यादा होगी, देन E2 होगी, देन E3 होगी, ठीक है। ये साइन गलत है, तो ये E1 सबसे ज़्यादा, E1 यहाँ पे E1 सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे मास कम है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो E1 यहाँ पे ये चेंज कर लेना, यहाँ पे दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। साइन आपका E1 सबसे ज़्यादा होगी, देन E2 होगी, देन E3 होगी, ठीक है। तो सबसे कम आपको हीलियम आयन में चाहिए होगी एनर्जी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कहना मेरा, न्यूट्रॉन मूविंग विद द स्पीड v मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट दैट इज केप्ट एट रेस्ट। तो न्यूट्रॉन है दैट इज मूविंग विद द स्पीड v दैट मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम विच इज एट रेस्ट v इज इक्वल टू 0। The minimum kinetic energy for the neutron in which the inelastic collision will take place. We have to find out the minimum kinetic energy of the neutron in which the inelastic collision will take place, ठीक है। So we have to find out that minimum kinetic energy निकालते हैं। So we have been given this kinetic energy, so we have to find out which is the minimum kinetic energy. सो हम देखते हैं हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी होती है जब भी कोलिजन होता है, तो दो चीज़ें तो आप हमेशा पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ मूव करो, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करो एंड ट्राई टू रिलेट विद बोथ ऑफ देम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम आपकी इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v mv और फाइनली दे आर मूविंग विद वेलोसिटी फॉर द इनलास्टिक कोलिजन है हमारे को, तो दे बोथ आर मूविंग विद v1 एंड v2। तो m v1 m v2 बिकॉज न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का मास मेरा सेम है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल जो एनर्जी थी आपकी, ठीक है, दैट इज़ योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर योर न्यूट्रॉन प्लस आपके ये दोनों किसी काइनेटिक एनर्जी से जा रहे होंगे प्लस एक्साइटेशन एनर्जी जो मेरा एक्साइट हुआ होगा, ठीक है, मिनिमम बिकॉज इनलास्टिक कोलिजन है। इनलास्टिक कोलिजन का मतलब कि एनर्जी लॉस जो हुआ होगा, तो एनर्जी लॉस जो हुआ होगा इससे मेरा जो हाइड्रोजन एटम होगा वो एक्साइट हुआ होगा, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल द इज द एक्साइटेशन एनर्जी प्लस डेल्टा ई, ठीक है। सो दिस माई एक्साइटेशन एनर्जी। नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो वी स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ और हमारे को यहाँ पे इफ़ वी सी के वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं ये रख दूँ यहाँ पे हेयर, यहाँ से ये 1/2 और यहाँ पे इसको 2 टाइम्स ऑफ ई कर दें हम अगर हम, तो यहाँ पे आप अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू वी पुट दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे उठा के ये वाली डाल दो, तो v1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2e/m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये वाली टर्म कौन सी, ये वाली टर्म ये आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा e/m, ठीक है। और ये हमारी इसको स्क्वायर करके आ गई थी। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन को, तो v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड दैट ये आपका बचेगा कि 2v1 दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, बिकॉज ये वाली टर्म तो आपकी सेम ही है, तो 2v1 v2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया यहाँ पे 2v1 v2 इज इक्वल टू 2√e/m, ठीक है। नाउ हमारे को बेसिकली निकालना क्या है, हमारे को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये मेरे को निकालनी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है। नाउ व्हाट विल डू, हमारे को विल डू सम मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v1 माइनस v2 जो हमारी यहाँ पे एनर्जीज थी इसका स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा v1, इसको स्क्वायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ v1 v2, बिकॉज मेरे को रिलेशन यहाँ पे v1 v2 के बीच में पता है, मेरे को डेल्टा ई पता है। डेल्टा ई जो होगा आपका फॉर टू
डेल्टा ई इज़ नथिंग बट अगर आपको ये वैल्यू मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी व्हेन इट इज़ गोइंग फ्रॉम 1 से 2 पे जब एनालाइज होगा, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम बिकॉज यहाँ पे मेरे को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू डेल्टा ई की आई नो व्हेन इट इज़ मूविंग व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेट एक्साइटेड फ्रॉम 1 से 2। तो हम लोग यहाँ पे पुट करके वी कोड एबल टू गेट समथिंग। तो यहाँ पे v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर को वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2। तो ये वाली चीज़ ना हमेशा याद रखना, इन द कोलिजन काफ़ी टाइम यूज़ होगा ये आपकी चीज़ें ना, कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारा कोलिजन में ज़्यादातर ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूज़ होता है। तो v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर इजकल टू v1 प्लस वी टू का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2। तो यहाँ से ये मेरे को पता है v1 प्लस v2 ये मेरा यहाँ से आ गया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ठीक है, माइनस 4, अब इसको मैं लिख सकता हूँ दैट वी कैन राइट इट डाउन डेल्टा ई बाई एम। ठीक है, v1 v2 की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, दैट इज कम्स आउट टू बी, इससे ही कैंसिल हो गया, तो डेल्टा v1 v2 इज नथिंग बट डेल्टा ई बाई एम। ठीक है, तो डेल्टा ई बाई एम आ गया यहाँ पे। नाउ ये जो है आपका दिस वैल्यू इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। नाउ दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, देन v स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा ई बाई एम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वी कैन पुट दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अगर हम देखें कि यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई। नाउ इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू व्हेन द ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम 1 से 2। जब आपका हाइड्रोजन एटम का 1 से 2 में ट्रांजिशन होता है तो डेल्टा ई कितना होता है आपका 10.2, बिकॉज 13.6 से 3.4 जाता है, तो डेल्टा ई कम्स आउट टू बी 10.2। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू 10.2 डाल दो तो योर वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20.4। आप मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए होगी आपको 20.4। ठीक है, सो 20.4 इज आंसर फॉर दिस, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद आवर एटॉमिक फिजिक्स। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एटम्स पढ़ लिया अब हमने। So in the next lecture we are going to look into the other part of the atom which is our nucleus। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो स्टार्ट हुआ था that started from the Rutherford। After Rutherford experiment he has seen कि एटम्स मोस्टली जो है खाली है, बट एक कोई पोजीशन है जहाँ पे इट इज़ हेविली डेंस आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, सो फ्रॉम देयर द मिस्ट्री ऑफ एटम हैज़ बीन further go into the direction of our nucleus to understand what is there in the nucleus। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें आएंगी, पहले तो रदरफोर्ड से ही स्टार्ट हुआ था सारा प्रोसेस, और फिर देखा जाएगा कि आपके हाउ द पॉजिटिव चार्ज इज़ बिन केप्ट इन सच अ स्मॉल रीजन, किस तरीके से रखे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज अभी तक हमारी जितनी भी फोर्सेस हमने पढ़ी थी उसमें अभी तक ऐसी कोई भी फोर्स नहीं आएगी, बिकॉज सबसे आपकी हैवी सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स अभी तक आई थी आपकी, एक तो होती है आपकी ग्रेविटी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ग्रेविटी तो आपको होल्ड नहीं कर सकती दो मास को अट्रैक्ट, बिकॉज ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, बट पॉजिटिव जो होगा वो रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्सप्लोड पॉजिटिव इतना क्लोज एरिया में रखेंगे, इतने क्लोज डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ग्रेविटी तो बिल्कुल इम्पैक्ट सामने कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। देन दे विल डिस्कवर देयर इज़ वन मोर फोर्स विच इज़ होल्डिंग एट्स अ ग्लू in the nucleus। ठीक है, so that is we are going to see in the next lecture। अब next lecture में we'll try to understand the nuclear structure in the nuclear physics, right। ठीक है, तो मिलते हैं next lecture में। all right, thank you।